Now today we'll start with the topic of abatement of suicide, and you just need to keep in mind that you need to understand all of this from the point of view of dowry death as well, because often what happens that consistent cruelty often leads to a married woman committing suicide, and that is a scenario where the charges of section 306 are also incorporated, and then there is an interplay between the sections of the IPC and the sections of the Indian Evidence Act. So one in particular is 304B, another one which is in particular is section 306. Now that has to be read with section 113A of the Indian Evidence Act when we are talking about a suicide being committed by a married woman within the 7 years of a marriage. So what does section 113A of the Indian Evidence Act says first? We need to get it clear before we start with the nuances of abatement of suicide. Now, section 113A of the Indian Evidence Act says presumption as to abatement of suicide by a married woman. When the question is whether the commission of a suicide by a woman has been abetted by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she has committed suicide within the period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband has subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the circumstances of the case, that such suicide has been abetted by her husband और by such relative of her husband. So देखिए यहाँ पे may presume है, 113B में क्या था, shall presume था. तो ये प्रिजम्पशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है 113A का? इट इज़ रिलेटेड टू प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमन. इसका स्कोप हमेशा ध्यान में रखिएगा. इसमें कुछ सिमिलर एलिमेंट्स हैं जैसे कि 113B में होते हैं, बट इट इज़ डिफरेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वेल 113B रिलेट्स टू अबेटमेंट एज टू डाउरी डेथ. 113A स्पेसिफिकली कहता है कि जब सवाल ये है कि वुमेन की सुसाइड हस्बैंड या उसके किसी रिलेटिव ने अबेट की है, और ये दिख जाता है कोर्ट को कि सुसाइड 7 साल के अंडर हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, और उसकी डेथ से पहले, वुमेन की डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकता है, करेगा नहीं, शैल प्रिजम्पशन नहीं है, कर सकता है, मे प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड टू ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस that such suicide has been abetted by her husband or by a relative of her husband. So थोड़ी बहुत commonality है, but with a very wide difference between 113A and 113B. 113B में shall presumption है, यहाँ पे may presume है. यहाँ पे कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन नहीं है, कोर्ट चाहे तो presumption बना ले और चाहे तो ना बनाए. That is up to the court depending on the fact and circumstances of the case. और पर similar elements क्या हैं? 7 साल के अंडर डेथ और सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी. और आपको पता है सून बिफोर हर डेथ का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे यूज़ हुआ है, वहाँ पे एक प्रॉक्सिमेट लाइव लिंक होना चाहिए फ्रॉम द क्रूएलिटी टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इन दिस केस, एंड इट मस्ट बी शोन बाय द प्रोसिक्यूशन दैट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द क्रूएलिटी which caused the eventual death of a woman, and in this case it was due to abatement of suicide. Always remember, this presumption, like 113B's presumption, is not automatic. Merely because the prosecution has alleged that there is a charge of section 306 and a married woman has committed suicide within 7 years, by itself the court will not presume these circumstances. The prosecution has to show that the death occurred due to suicide within 7 years of marriage, and there was a proximate live link between the cruelty and the abatement of suicide by the husband towards the married woman. That has to be shown categorically. और जब ये लिंक दिख जाता है कोर्ट को, जब कोर्ट ये देख लेता है कि हाँ ये प्राइमा फेसाई फैक्ट्स ये सेटिस्फाइड हो गए हैं कि मैरिड वुमेन की डेथ 7 साल के अंदर हुई थी, सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी एंड द चार्जेस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, देन इन दैट सिचुएशन कोर्ट सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रिजम्पशन कर सकता है कि द सुसाइड हैज़ बीन अबेटेड बाय द हस्बैंड ऑफ द वुमन और एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड एज द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन में बी. ठीक है.
Now first we'll quickly read section 305 of IPC, then we'll come to section 306. Abatement of a suicide of child or insane person. अच्छा, इसमें डेथ पेनल्टी है. If a person under 18 years of age, any insane person or any delirious person का मतलब है कि वो he is in a state of delirium, delusion की state में है. The clinical definition of delirium is serious disturbance in mental abilities that results in confused thinking and reduced awareness of the surroundings. And delirium is often caused by high levels of intoxication and sometimes also caused by high levels of sleep deprivation. ठीक है, तो उन दोनों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. In this situation, a person may be seeing things or hearing things which other people don't, and becomes confused and doesn't know where he is and no longer recognizes the person around them. These are the symptoms of delirium, and substance abuse including drugs, alcohol, etc. can lead to this stage as well, along with the emotional disturbance as well. So continuing further in 305, any delirious person, any idiot or any person in the state of intoxication, बहुत नशे में है वो, deep नशे में है, commit suicide, then whoever abets commission of such suicide shall be punished with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term not exceeding 10 years, and shall also be liable to fine. तो 305 ये कहता है कि ये जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है, अगर इनकी सुसाइड अबेट की गई, विच इज़ अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, एनी इंसेन पर्सन, कोई पर्सन पागल है, इंसैनिटी से ग्रसित है, उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंसैनिटी अबेट की सुसाइड, या किसी डिलीरियस पर्सन को, डिलीरियम की डेफिनेशन मैंने दे ही दी, फिर एनी इडियट और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बहुत नशे में बहुत डीपली ग्रसित और उसको अबेट की सुसाइड. और अगर ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर लेता है एंड डाइज इन कंसिक्वेंस, देन whoever abets commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment for life or a term not exceeding 10 years and also liable to fine. Now we come to the section 306 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. देखिए 305 अपने स्कोप में काफ़ी वाइड है, लेकिन ये उन्हीं कैटेगरी ऑफ पर्सनस पे अप्लाई करता है जो कैटेगरीज मेंशन्ड है. जनरली आप जब भी कोर्ट में जाएंगे या जनरली यू लुक एट द प्रोसिक्यूशन केसेस, यू विल सी द चार्ज ऑफ 306 मोस्ट ऑफन. ठीक है, when there is a case of abatement of suicide, 305 is rarely seen, although it is seen. Abatement of suicide, if any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either of description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो बेसिकली 306 एक तरीके से एक रेसिडुअल क्लॉज है. 305 में से जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आप उनको हटा दीजिए तो फिर बाकी जो बचे, तो उनकी सुसाइड अगर किसी ने अबेट की, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, he is not insane, he is not delirious, he is not an idiot, he is not in a state of intoxication, उसकी सुसाइड अगर अबेट करवा दी and he dies in the consequence, all right, of course suicide means that the person has actually killed himself, and whoever in this situation who has abetted the suicide, he will be punished with an imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years. Either description of a term का ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंसिंग पॉलिसी में बता चुका हूँ. इट मीन सेंटेंस रिगरस या सिंपल या दोनों हो सकता है इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब मैरिड वुमेन की सुसाइड हुई है एंड द चार्ज इज ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमेन, तो आप हमेशा 306 रेड विद 113A अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज दैट इज नेसेसरी in order you to completely grasp the situation when it relates to dowry and a woman has committed suicide and the charge is against the husband or his relatives, that they are the ones who have averted the suicide of a married woman. तो उस सिचुएशन में यू विल इनकॉर्पोरेट 113A और वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्या डेथ occurred within 7 years of marriage and was there a proximate link between the cruelty and the abatement of suicide, etc, etc. You have to see all this. तो as far as married woman is concerned, जिसकी शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो you would make sure कि when the charge is of abatement of suicide of a married woman, you will always read it with 113A.
if the marriage has not completed its 7th year. ठीक है? And when the charge is of dowry death 304B and the ingredients of dowry deaths are present prima facie, then you will read it with 113B. ठीक है? You will not read it with 113A तक. Dowry death के cases में you will read it with 113B. And it is only the abetment of suicide के cases में जहाँ पे women को 7 साल हुए हैं शादी के और abetment to suicide का charge है against the husband and the in-laws, and it is shown that the woman was inflicted with cruelty for one reason or the other, and having regard to all the circumstances of the case, the court may presume that it was the husband or his relative who has abetted the suicide of the woman. एक बहुत essential चीज़ का डिफरेंस याद रखिएगा सेक्शन 113A में. 113A में पहली बात तो मे प्रिज्यूम है, कोर्ट के ऊपर फाउंडेशन नहीं है प्रिजम्पशन की, अनलाइक 113B. 113B में कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना होगा अगर 113B के प्रिजम्पशंस के लिए जो इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं वो प्रूव हो गए. वैसे ही 113B में जो वर्ड्स हैं ना, कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, ये 113B में ऑकर होते हैं पर 113A में नहीं है. These words are not there. So you need to make sure that you take note of this crucial difference. 113B of the Indian Evidence Act कहता है, and the question is whether the person has committed dowry death of a woman, and it is shown that soon before her death, such woman has been subject by such person to cruelty or harassment, for in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person has caused dowry death. But section 113A क्या कहता है? When the question is whether the commission of suicide by a woman has been abetted by a husband or any relative of her husband, and it is shown that she has committed suicide within the period of 7 years from the date of her marriage, and her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the circumstances of the case, that such suicide has been abetted by a husband or relative of a husband. अब यहाँ पे कौन से words गायब हो गए? You need to make sure कि what is the fundamental difference. वहाँ पे connection with any demand for dowry वाले words गायब हैं, but cruelty is still there. Explanation भी बताती है cruelty shall have the same meaning as under 498A, but you need to keep in mind this important difference कि legislature ने 113B में shall presumption रखा है और वहाँ पे additional एक चीज़ include की है for or any correction in demand for dowry. 113A में ये word occur ही नहीं होते, यहाँ पे cruelty simpliciter है. Alright, and in dowry death lecture I have explained to you what is the definition of cruelty for the purpose of criminal law. You need to keep that in mind. Alright, so with this out of the way, we will talk about the essentials of 306. अब देखिए, abetment of the suicide को जानने के लिए आपको पहले abetment जानना पड़ेगा. Abetment मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि abetment क्या है. For that you need to refer the lecture of abetment. It is very necessary. That is why I completed it beforehand, before I began the lecture of 306. तो instigation होना चाहिए, ठीक है. To constitute an instigation, a person who instigates another has to provoke him, to incite him, to urge him, or encourage doing of an act by the other by goading or urging forward. ठीक है, ये एक essential element होता है instigation का, क्योंकि abetment to suicide की बात कर रहे हैं, तो abetment का एक primary element है instigation. ठीक है, अब suicide आप किसी की abet by conspiracy या by aid in आराम से नहीं करवा सकते, उसका एक main element होता है instigation. Generally instigation के through suicide अबेट करवाई जाती है. जैसे कोई आदमी किसी की लाइफ हेल करवा दे, किसी वुमेन की लाइफ हेल कर दे, ही वायलेंटली बीट्स हर एवरी डे एंड ही इज़ जनरली क्रूअल टू हर, एंड द वाइफ बिलीव्स दैट माई लाइफ वुड बी बेटर इन नेक्स्ट लाइफ एंड शी थिंक्स दैट इट इज़ सफिशिएंट दैट आई माइट किल माई सेल्फ बिकॉज एनीथिंग इज़ बेटर देन दिस मिजरेबल कंडीशन दैट आई एम लिविंग इन, and she commits suicide, then in that situation where is the instigation here? The instigation is the beating of the husband, the general cruelty of the husband, the provocation, the incitement, and if that has led to suicide, then that would constitute abetment to suicide. ठीक है, एक general illustration दे रहा हूँ. So in other words, to prove that the accused person has abetted commission of a suicide by a person,
it has to be established that accused first of all kept on irritating or annoying the deceased by words, by deeds, or by willful omission or conduct, which may even be a willful silence, until the deceased reacted or pushed or forced the deceased by his words, deed, or willful omission or conduct to make the deceased move forward more quickly in a forward direction. In other words, इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये जो विलफुल कंडक्ट है, जो वर्ड है, जो डीड है, जो विलफुल इमोशन है, जिसके अंदर विलफुल साइलेंस भी आता है, वो एक तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा रहा था कि जो डिसीज्ड है वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़े. सो इट इज़ अ पॉजिटिव अफर्मेशन. ये जो जितना भी कंडक्ट हो रहा है, जो जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो कंडक्ट, willful omission, etc., are there to make the deceased move forward more quickly in a forward direction. And second, that the accused had the intention to provoke, to urge, to encourage the deceased to commit suicide while acting in the manner that I just mentioned. Undoubtedly, that is the presence of mens rea which is necessary concomitant of the instigation. तो 306 के पर्पस के लिए these are the necessary elements that you need to keep in mind. एक पॉजिटिव असर्शन होना चाहिए which the accused kept on irritating, annoying the deceased by words, deeds or willful omission with a view to make the deceased move forward more quickly towards the eventual suicide. कि वो खुद को मार ले, इसीलिए ऐसा वर्ड, कंडक्ट जिसके अंदर willful silence भी है वो यूज़ हो रहा है. सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्यूज्ड के पास इंटेंशन होना चाहिए टू प्रोवोक, टू अर्ज और encourage the deceased to commit suicide while acting in the manner that I just mentioned. ये इंटेंशन ज़रूर होना चाहिए कि वो जितना भी प्रोवोकेशन, जितना भी अर्जिंग या इंकरेजमेंट दे रहा है वो उसका सुसाइड अबेट करवाने का इंटेंशन है. द इंटेंशन हैज़ टू बी देयर. ठीक है, ये एक साथ मिल के इंस्टिगेशन का पैरामीटर सेटिस्फाई करते हैं और इंस्टिगेशन एक बार अप्रूव हो गया तो अबेटमेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा एंड द पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर 306 ऑफ द IPC. अब ये जो पॉइंट मैंने जस्ट मेंशन किया ये चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट का है. ये 10 अगस्त 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था एंड इट इज़ अ लोकस क्लासिकस. इस पॉइंट पे इसी ने क्या किया है, जो पूरी पोजीशन है ना 306 पे वो समराइज़ कर दी है. चित्रेश कुमार चोपड़ा के जजमेंट ने क्या किया था, इट रिलाइड ऑन द जजमेंट ऑफ रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ टू कम टू दैट कंक्लूजन. ये जो जितने भी इंस्टिगेशन इज टू गो, डर्ज, प्रोवोक, फॉरवर्ड एक्सेट्रा है, ये ओरिजिनली रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए थे और उसी को चित्रेश कुमार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ने रिप्रोड्यूस किया. ये दोनों ही लोकस क्लासिकस हैं. आज चाहे तो चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट मेंशन कर दें या रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ मेंशन कर दें, बोथ आर ऑन द सेम पॉइंट और सेम चीज़ मेंशन करते हैं. एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इंस्टिगेशन है और जो अबेटमेंट है इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला भी नहीं है. ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में दिखेगा कि क्या चीज़ प्रोवोकेशन हुई, क्या चीज़ नहीं हुई. इसका कोई कट एंड राइट आंसर मत निकालिएगा. ये जो नेसेसरी प्रिंसिपल्स हैं ये ध्यान में रखने ज़रूरी हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन किए. सिमिलरली द कोर्ट चित्रेश कुमार चोपड़ा में एक वार्निंग भी दी गई थी ये सारी बातें बताने के बाद कि इंटेंशन टू प्रोवोक, इंसाइट, इंकरेज, ये तो सेकेंड क्राइटेरिया है. फर्स्ट क्राइटेरिया है कि देयर वाज अ पॉजिटिव अफर्मेशन in order to make the deceased go forward towards a particular end which is suicide in this case. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी, each person's suicidability pattern is different from others. Each person has his own idea of self-esteem, self-respect, and therefore it is impossible to lay down any straight-jacket formula in dealing with such cases. Each case has to be decided on the basis of its own fact and circumstances. तो पैरामीटर्स जो अभी मैंने मेंशन किए 1 और 2 वो तो सेम रहेंगे, लेकिन वो पैरामीटर्स क्या चीज़ प्रोवोकेशन मानी गई, क्या चीज़ अर्जिंग या गोडिंग मानी जाएगी, क्या चीज़ पॉजिटिव अफर्मेशन मानी जाएगी, या अक्यूज का इंटेंशन था टू मेक द डिसीज टू गो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एंड, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस से पता चलेगा. जैसे कि रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट हो रहा था. हस्बैंड ने गुस्से में बोल दिया
यू आर फ्री टू वट whatever you wish and go wherever you like. ये लाइन बोली थी, यू आर फ्री टू डू whatever you wish and go wherever you like. तुम्हें जो मन करना है करो, जहाँ जाना है जाओ. इसके बाद जो अपेलेंट था रमेश कुमार, उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली. तो फिर ये सवाल था कि क्या रमेश कुमार ने अपनी वाइफ की सुसाइड करवाई है? हैज़ ही अबेटेड द सुसाइड एज इज पनिशेबल अंडर 306? फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली जो इंस्टिगेशन के एलिमेंट्स थे. इंस्टिगेशन इज टू गोड, अर्ज फॉरवर्ड, प्रोवोक, इंसाइट और इनकरेज टू डू एन एक्ट टू satisfy the requirement of instigation. It is not necessary that the actual words must be used to that effect, or what constitutes instigation must necessarily and specifically be suggestive of a consequence. Yet a reasonable certainty to incite a consequence must be capable of being spelt out. And Supreme Court said that the present one is not a case where the accused by his act or omission or by a continued course of conduct created circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide, in which case an instigation may be inferred. A word uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequence to actually follow cannot be said to be instigation. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी नहीं माना था हस्बैंड को फॉर द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. सिमिलरली द वाइफ डाइड इन द कंसिक्वेंस. वाइफ जो है वो मर जाती है ड्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ द हस्बैंड दैट यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू विश एंड गो वेयरएवर यू लाइक. तो यहाँ पे हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट ने लायबल नहीं माना था. कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हस्बैंड ने जो ये एक्सप्रेशन दिए हैं, जो वर्ड्स कहे हैं, उसमें उसका इंटेंशन नहीं दिख रहा. ही नेवर वांटेड हर वाइफ टू कमिट सुसाइड. उसने तो गुस्से में बोल दिया. अब उसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा अलग हुआ. तो वहाँ पे इंस्टिगेशन का नेसेसरी एलिमेंट जो इंटेंशन भी ज़रूरी है वो गायब है. सो हेयर इट इज़ नॉट अ केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड द हस्बैंड वॉज नॉट हेल्ड लायबल फॉर दिस. नाउ लेट अस सपोज एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. लेट अस सपोज अ मदर सीज हर सन टेकिंग ड्रग्स डेली. So one day in a fit of rage, a mother says that rather than having a son like you, it is better that I shouldn't have a son at all. ऐसा बोल देती हैं गुस्से में. And due to this, let us suppose the son commits suicide. Now, can it be said that the mother actually abetted suicide? It cannot be said that the mother abetted suicide in this case, because the mother's intention was not actually to make her son commit suicide. Her intention was to make sure that her son stops taking drugs. ये main intention है उनका. So that is why, if let us suppose in a fit of rage one day when she sees that her son is not listening to her, he is still taking recreational drugs and indulging into debauchery and all sorts of illegal activities. So in a state of rage she says that, then that is not an abetment to suicide, क्योंकि intention missing है instigation वाला, और साथ में goading forward is missing है. और अगर words को आप गौर करें, so words also do not convey any sort of semblance to the point that the mother in this case actually wants her son to commit suicide. So this would depend mostly on fact and circumstances of the case. This is why in Ganguly Mohan Reddy versus State of Andhra Pradesh, it was reported in 2010, Supreme Court cases, page number 750. Supreme Court said that while interpreting section 306 IPC, abetment involves a mental process of instigation and a person intentionally aiding a person in doing a thing, and without a positive act on the part of the accused person in instigating or aiding to commit suicide, there cannot be any conviction. तो जब तक कोई पॉजिटिव एक्ट आप दिखा ना पाए अक्यूज ने करवाई कि सुसाइड करवाने के लिए, लेट अस सपोज फांसी का फंदा तैयार करवाया और बोला लटक जाओ, या फांसी का फंदा दिखा के ऐसी हेलिश सिचुएशन क्रिएट की कि जो डिसीज था उसने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव अफर्मेशन दिख रहा है. तो ऐसे केस में मेंसरिया भी एस्टैब्लिश हो जाएगी और अबेटमेंट के इंग्रेडिएंट्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे अबेटमेंट टू सुसाइड के. तो ऐसे केस में तो पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है. पर जहाँ पे मेंटल प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेशन नहीं दिख रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज नहीं दिख रही है टू एक्चुअली इंस्टिगेट और एड इन कमिटिंग द सुसाइड और टू इनकरेज कमीशन ऑफ सुसाइड, तब कन्विक्शन नहीं हो पाएगा 306 में. अब जैसे एक सर्विस को लेके एग्जाम्पल लीजिए. ये मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है. जब
लेट अस सपोज कोई आदमी सीनियर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कोई बॉस की पोजीशन में और अपने जूनियर या किसी सबॉर्डिनेट को कोई डायरेक्शन देता है और लेट अस सपोज उस डायरेक्शन को कंप्लाई करने की जगह जूनियर सुसाइड कमिट कर ले, तो उन सारी सिचुएशंस पे ये अथॉरिटी है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है. सो मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इज लोकस क्लासिकस ऑन दीज टाइप्स ऑफ केसेस, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा. सो व्हाट हैपेंड इन मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात? In Madan Mohan Singh versus State of Gujarat, the deceased person was a driver. He had undergone a bypass surgery and was advised against performing any stressful duties. बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी, उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप कोई स्ट्रेसफुल काम मत करिएगा. अक्यूज्ड मदन मोहन जो थे, ही वॉज अ सुपीरियर ऑफिसर, और एक दिन उन्होंने डिसीज्ड को बहुत डांटा और ही थ्रेटन टू सस्पेंड हिम व्हेन द डिसीज हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. उस डांट का इफेक्ट ये हुआ दैट द डिसीज वेंट इनटू अ डिप्रेशन एंड कमिटेड सुसाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड अ सुसाइड नोट स्टेटिंग दैट द अक्यूज्ड वाज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ. In these facts, Supreme Court held that there must be allegations to the effect that the accused has either instigated the deceased in some way to commit suicide or had encouraged with some other person in conspiracy to do so, that the accused had in some way aided any act or illegal omission to bring about suicide. So in this case, the Madan Mohan Singh actually went to the Supreme Court for a prayer to quash the FIR, क्योंकि उसने तो ना एड किया, ना इलीगल ओमिशन किया, ना इंस्टिगेट किया, उसने तो सिर्फ डांट लगाई थी क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं फॉलो हुआ था. और उसका एक एक्सट्रीम एंड ड्राइवर ने ये बना लिया कि आई शुड कमिट सुसाइड. ही वॉज हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने मदन मोहन सिंह की बात मानी और जो FIR थी वो क्वॉश कर दी, केस को क्वॉश कर दिया. और बहुत ही आसान है आपको ये समझना कि क्यों किया. अगर हर बार सीनियर कोई डायरेक्शन दे और जूनियर डायरेक्शन को फॉलो करने के बजाय सुसाइड कमिट कर ले, तो आप क्या सीनियर को रिस्पॉन्सिबल बनाते रहेंगे कि ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड? नो. ऐसा अगर होने लगा तो कोई भी सीनियर आदमी जूनियर आदमी को डायरेक्शन ही नहीं दे पाएगा, बिकॉज ऑफ द फियर दैट व्हाट इफ ही कमिट सुसाइड. तो जो सुपीरियर आदमी था इस केस में मदन मोहन सिंह, सुपीरियर ऑफिसर जो था, he had rebuked the deceased harshly and threatened to suspend him because the deceased driver failed to comply with his direction. By itself क्या आप ये assume कर सकते हैं that was an abetment to suicide? क्या आप सोच सकते हैं कि मदन मोहन सिंह ने गोड किया, इंस्टिगेशन किया, प्रोवोक किया कि वो जाके सुसाइड कर ले, और क्या उसके पास इंटेंशन था कि वो जाके सुसाइड कर ले? नो. बाय दीज फैक्ट्स अलोन, देखिए इतने ही फैक्ट्स थे, इन फैक्ट से कहीं नहीं दिख रहा है कि मदन मोहन सिंह का इंटेंशन था. तो इन दिस सिचुएशन ही कैन नॉट बी मेड लाइबल. तो जहाँ पे लॉफुल डायरेक्शंस की बात हो रही है, जहाँ पे लॉफुल डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, तो जहाँ पे लॉफुल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, वहाँ पे किसी भी तरीके का ऑर्डर या डायरेक्शन अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं माना जा सकता. मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इस बात पे अथॉरिटी है, इस केस को याद रखिएगा. लेकिन एक और केस मैं बताता हूँ जो मदन मोहन सिंह से काफ़ी अलग है. ये है प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, 2012, वॉल्यूम नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 734 में रिपोर्ट हुआ था ये. इसमें अ जूनियर ऑफिसर वॉज अलेजेडली कंपेल्ड बाय द सुपीरियर टू इंडल्ज इन सेवरल रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस. बहुत गलत कामों में लिप्त होने के लिए सुपीरियर ने जूनियर को कहा. अब यहाँ पे इलीगैलिटी की बात हो रही है. So, the junior officer was allegedly compelled by the superior to indulge in several wrongful practices at the workplace. The junior officer was not at all comfortable in complying with such orders, as a result of which the junior officer was harassed. He was insulted on regular intervals and was disgraced in front of the staff of the entire factory, and also rebuked with the comments such as, had there been any other person in his place, he would have committed suicide by hanging himself. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन वर्ड्स को. सबके सामने इंसल्ट की जा रही है फॉर नॉट कंप्लाइंग विद एन इलीगल डायरेक्शन, और बोला क्या जा रहा है बार बार, हैड देयर बीन एनी अदर पर्सन इन हिज प्लेस ही वुड हैव died by hanging himself, he would have committed suicide by hanging himself. The junior officer couldn't bear it any further and committed suicide, leaving behind a note detailing all these incidences and asserting it against his superior. In these circumstances, Supreme Court rejected the prayer for quashing the FIR. यहाँ पे मदन मोहन सिंह वाले फैक्ट्स नहीं थे, यहाँ पे इलीगल डायरेक्शन था.
यहाँ पे कॉन्टीन्यूस हरासमेंट था, यहाँ पे कंटिन्यूस क्रिएशन ऑफ दैट एनवायरनमेंट था विच मेड द डिसीज पर्सन टू गो फॉरवर्ड टू कमिट अ पॉजिटिव एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सुसाइड. और ऊपर से जो ये वर्ड्स थे, दे देमसेल्व्स वर actually pointing towards that direction that the this accused person actually made the situation where he wanted the deceased person to commit suicide. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने FIR क्वॉश करने से मना कर दिया और बोला कि जाइए, आपको तो पूरा ट्रायल झेलना पड़ेगा. तो आप देख सकते होंगे कि कैसे सिचुएशंस पे चीज़ें बदलती हैं. ठीक है, आपको ये सारे केसेस ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जिससे आपको ये पता चले कि सर्विस लॉ में जो डायरेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ पे अबेटमेंट टू सुसाइड माना जाएगा. अगर मान लीजिए व्यक्ति एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय की रिलेशन है, और वहाँ पे क्या होता है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़्यादा ज़रूरी है. डाउरी डेथ वाले पॉइंट्स पे भी मैं आऊँगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल. इफ़ यू प्लान ऑन गिविंग डेली जुडिशियल सर्विस, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल दिस. नाउ recently on 17th May 2018 there was this judgment of Vaidyanath Kondeba Khandke versus State of Maharashtra. It lays down a very interesting position, very similar to your judgment of Madan Mohan Singh. अच्छा, इसमें क्या हुआ? There was this one Kishore Parashar serving in the office of Deputy Director of Education Aurangabad. He committed suicide on 8th of August 2017 in his house. His wife made complaints to the police that her husband was suffering from a mental torture as his higher officers were getting heavy work done from her husband, who was required to work from 10 a.m. to 10 p.m. and her husband would be called at odd hours even on the holidays to get the work done. The officer investigated the case, and Supreme Court on these circumstances actually found that the appellant Vaidyanath, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उन्होंने ड्यू टू सम रीजन ही स्टॉप्ड द सैलरी ऑफ द जूनियर ऑफिसर किशोर पाराशर who died in this case for 1 month, and he was threatening him with the threat that his increment would also be stopped. And one co-worker whose name was Ghorpade also used to get work done from her husband, and because of this constant pressure from all sides, the husband used to remain silent, and eventually he couldn't bear pressure no more and committed suicide. So यहाँ पे वर्क प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट होने का एक केस है. सिंपल सा, एक लाइन में बता रहा हूँ, पर ये आपको पूरे फैक्ट्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं? इन फैक्ट्स पे आपको दिख रहा है वर्क प्रेशर है, वर्क प्रेशर सुपीरियर की तरफ से आ रहा है. वर्क प्रेशर में जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं वो इलीगल नहीं है, लॉफुल हैं. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला that first of all there is no suicide note left by the deceased, and the only material on record is in the form of assertions made by his wife in her reporting to the police. Supreme Court ने कहा it is true that if a situation is created deliberately as to drive a person to commit suicide, there would be room for attracting 306 IPC. However, the facts on record in the present case are completely inadequate and insufficient. As a superior officer, if some work was assigned by the applicant to the deceased, merely on that count it cannot be said that there was a guilty mind or a criminal intent. The exigencies of work and the situations may call for certain action on the part of the superior, including a stopping of salary of a junior officer for a month. The action simpliciter cannot be considered to be a pointer against such a superior officer. The allegations in an FIR are completely inadequate to do not satisfy the requirements of section 306 IPC. In our view, the facts of this case stand on a footing better than in Madan Mohan Singh, and there is absolutely no room for invoking the provision of 306 IPC. And after that, Supreme Court quashed the FIR. Supreme Court ने सिंपल शब्दों में बता दो ये बोला कि अगर सुपीरियर ऑफिसर कोई काम करवा रहा है एंड लेट अस सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में 1 मंथ की सैलरी रोक दी और ये बोला कि आपका इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाएगा अगर आप अपना काम ढंग से नहीं परफॉर्म करेगा, क्या वो एक्शन सिंप्लिसिटर ये मान लिया जाए कि वो 3 अबेटमेंट टू सुसाइड है? आंसर इज़ नो, क्योंकि वर्क सिचुएशंस में कभी कभी एकदम से बहुत सारा काम आ जाता है. दूसरी सिचुएशन ये होती है कि
इसका इन फैक्ट्स का ये भी मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वर्क सिचुएशन जो है, व्हेन यू रिकॉग्नाइज दीज फैक्ट्स यू वुड अंडरस्टैंड कि वर्क सिचुएशन जो है आप जब टोटलिटी में अंडरस्टैंड करते हैं उसे, तो बाय इटसेल्फ उससे आप अवेटमेंट टू सुसाइड नहीं बना सकते। हाँ, अगर वर्क सिचुएशन में जैसे कि प्रवीण प्रधान में जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी कि लीगल डायरेक्टिव्स दिए जा रहे थे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा था कि जहाँ पे वो अपने आप को मार ले, तो अवेटमेंट ऑफ सुसाइड में ले जाते अगर प्रवीण प्रधान के फैक्ट्स मिलते जुलते। लेकिन मेरली लॉफुल डायरेक्शन में देना या जिस काम के लिए सैलरी दिया जा रहा है उस वो काम करवाना, और अगर वो काम ढंग से नहीं हो पा रहे तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना, दोज बाय देमसेल्व्स डू नॉट क्रिएट द चार्ज ऑफ अवेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो इस केस में भी FIR को क्वॉश कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इन सारे जजमेंट्स का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से FIR क्वॉश करवाने में इज़ अ ह्यूज मनी। एंड सिमिलरली जो लोग जजेस की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से फैक्ट्स क्रिएट करते हैं ऑफेंसेस और कौन से फैक्ट्स क्रिएट नहीं करते हैं ऑफेंसेस। यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स इन डिटेल। एक केस में लॉफुल डायरेक्शंस हैं, लॉफुल काम करवाया जा रहा है, लॉफुल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं विच आर ऑथराइज बाय लॉ। एक में इलीगल काम करवाने के लिए बोला जा रहा था, जैसा कि प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल में रेगुलर इंसल्ट किया जा रहा था, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा था कि सच में डिसीज पर्सन सुसाइड कर ले, और साथ में ये भी कहा जा रहा था एट देयर बीन एनी अदर पर्सन इन हिज प्लेस ही वुड हैव कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ। तो वो सिचुएशन डिफरेंट थी और ये सिचुएशन डिफरेंट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ जज how to differentiate between the two situations and where does the charges are being satisfied and where the charges are not being satisfied under section 306. Now there is another peculiar situation. अब ये सर्विस लॉ से हट के बता रहा हूँ, सर्विस मैटर से हट के बता रहा हूँ। यह स्वामी प्रहलाद दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की 1995 सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम नंबर 3 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम थी, ये पेज नंबर 438 में रिपोर्ट हुआ था। इन दिस केस there was this woman named Sushila Bai. She was a married woman and she had two paramours. There was sexual jealousy between the two. दोनों paramours एक दूसरे से jealous थे. There was sexual intimacy between Sushila Bai and both of them. Sushila had managed to completely bewitch one of them. मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया था एक को. He was so attracted with her. In one fine morning, while Sushila Bai was having morning tea with both her paramours, they began to quarrel. Paramours आपस में झगड़ा करने लगे. During the course of such quarreling, one of them made a remark asking other to go and die. एक paramour ने दूसरे से बोला कि तुम जाके कहीं मर जाओ. Other person to whom such remark was made went home feeling dejected and thereafter committed suicide. Supreme Court in this case held what? Supreme Court said, in the first place, it is very difficult in the fact and circumstances to come even at a prima facie view that whatever words that were uttered by the appellant was enough to instigate the deceased to commit suicide. Those words are casual in nature, which are often employed in the heat of the moment between the quarreling people. Nothing serious is to be expected to follow thereafter. The said act does not reflect the requisite mens rea on the assumptions, and these words would be carried out in all events. Besides, the deceased had plenty of time to weigh the pros and cons of the act by which he ultimately ended his life. It cannot be said that the suicide by deceased was a direct result of the act which the accused. It cannot be expected that the suicide by the deceased was a direct result of the words uttered by the appellant. ये सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कह दिया, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं था। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जो इंस्टिगेशन है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट सुसाइड होना चाहिए। तो आपको एक तीसरा एलिमेंट भी मिल जाता है। फर्स्ट इज द इंस्टिगेशन हैज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोवोकेशन. द अबेटमेंट शुड हैव द एलिमेंट ऑफ इंस्टिगेशन which means to provocate, to go, to urge forward, to commit a positive act. Second is those words which may include even willful silence or creation of an environment where the accused commits suicide. These environments and words and conducts and deeds are there with an intention that the deceased person should commit suicide. तो intention किसका होगा इस केस में? accused का. Third situation क्या है? That there must be a direct nexus between the abatement of the suicide and the death of the deceased. जो suicide commit हुई है और जो abatement किया गया उसमें उसके बीच में डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए.
ये पॉइंट आप स्वामी प्रहलाद दास स्टेट ऑफ एमपी से गैदर कर सकते हैं। है एक ही लाइन का पॉइंट, बस समझने में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट समराइज द इंटायर थिंग इन 2 or 3 लाइन्स। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अक्सर जब झगड़ा होता है तो एक पार्टी दूसरे आदमी को कह देती है गो एंड डाई, तुम कहीं जाके मर जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये अब ऐसी जो ये सब सिचुएशन होती हैं, ये बड़े कैजुअल वर्ड्स एम्प्लॉयड होते हैं, इनके पीछे कोई इंटेंट नहीं होता। आदमी तो राह चलते किसी से झगड़ा हो जाए, बोल दे तुम जाके कहीं मर जाओ, मर क्यों नहीं जाते। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज आने लगा तो आदमी वर्ड्स बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। तो जनरली जो लॉ है वो इंटेंट पनिश करता है जनरली। तो ध्यान रखिएगा, जब वर्ड्स एम्प्टी हैं, जब आदमी बोलने के लिए बोल रहा है, कैजुअली बोल रहा है, पर उसके पीछे कोई इंटेंट नहीं है, तो डैट वुड नॉट बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो इसीलिए स्वामी प्रहलाद दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ये जो वर्ड्स है ना, गो एंड डाई समवेयर, ये बड़े कैजुअली अटर किए जाते हैं जब लोगों में झगड़ा हो रहा होता है। नो बडी एक्सपेक्ट्स दम एनी पर्सन टू टेक दोज वर्ड सीरियसली। सिमिलरली एक और केस है संजू एलियास संजय सिंगर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1998। अब इस केस में भी यही हुआ था। क्वारल टुक प्लेस बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द डिसीज्ड। अक्यूज्ड ने गुस्से में डिसीज्ड को बोला गो एंड डाई समवेयर। A charge sheet was filed against the accused person under 306 107 IPC when the said person actually committed suicide. The court dealt with the issue elaborately, taking into the consideration of the fact that the accused has also specifically been named in the suicide note left behind by the deceased, and held that mere asking a person to go and die does not in itself amount to instigation, as it does not reflect the mens rea, which is a necessary concomitant of the instigation. The deceased was anyway in great distress and depression. The other evidence on the record also showed him to be a frustrated man who was in a habit of drinking. Thus, considering the such circumstances, the court quashed the proceedings against the accused, holding the ingredients of abatement were not fulfilled. यहाँ पे भी casual words पाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको माना नहीं कि it was a very severe thing. अब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरीलाल जायसवाल और अमिंदु पाल वर्सेस वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेम ही बात कही पर अलग तरीके से कही। अब वो गो एंड डाई के कंटेक्स्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इट हैज़ कॉशन्ड द कोर्ट्स टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन असेसिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस and determine on the evidence adduced in the trial for the purpose of finding whether the conduct was such as have made the victim to commit suicide, and does it satisfy the criteria as was laid down in Ramesh Kumar versus State of Chhattisgarh, etc. So in अमलेंदु प्रसाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सारे डिसीजंस को पास्ट में ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि द कोर्ट मस्ट scrupulously examine the fact and circumstances of the case and also assess the evidence adduced before it in order to find out whether the cruelty and harassment meted out to the victim had left the victim with no other alternative but put an end to her life. It is also to be borne in mind that in cases of alleged abetment of suicide, there must be proof of direct or indirect acts of incitement to the commission of suicide. Merely on the allegation of harassment, without there being any positive action approximate to the time of occurrence on the part of the accused which led or compelled the person to commit suicide, conviction in the terms of 306 is not sustainable in those circumstances. तो वही approximate link, direct act, direct result की बात हो रही है और approximation की बात हो रही है, वो दिखना चाहिए कोर्ट को in order to hold a person guilty under 306 along with the necessary elements of abetment, instigation और intention. ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरीलाल जायसवाल स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे है जहाँ पे अ क्रुएलिटी हैज़ बीन मीटेड आउट टू अ वुमन एंड टू अ मैरिड वुमन एंड शी हैज़ कमिटेड सुसाइड इन रिजल्ट ऑफ दैट क्रुएलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और कॉशन किया है कोर्ट को कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखें और देखें कि जो क्रुएलिटी जो मीटेड आउट हुई है विक्टिम को, क्या वो ऐसी थी, क्या वो वही क्रुएलिटी थी जिसकी वजह से विक्टिम ने सुसाइड कमिट की। इफ़ इट ट्रांसपायर्स टू द कोर्ट दैट द विक्टिम कमिटेड सुसाइड
was hypersensitive to ordinary petulance, discord, or differences in domestic life, which is common to the society to which the victim belonged. And such petulance, discord, and differences were not expected to induce a similarly circumstanced individual in a given society to commit suicide. The conscience of the court should not be satisfied for basing a finding that the accused charged of abetting the offense of suicide should be found guilty. तो एक कंडीशन कोर्ट ने ये लगाई है कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस पर्सन को अबेटमेंट दिया गया, झगड़ा किया गया या क्रुएलिटी मीट आउट की गई, कहीं वो हाइपर सेंसिटिव तो नहीं था जो ऑर्डिनरी झगड़े को या ऑर्डिनरी पेटिलेंस, डिस्कॉर्ड या डिफरेंसेस को जो उस क्लास ऑफ सोसाइटी, जिस क्लास को पर्सन बिलोंग करता है, वो कमिटेड सुसाइड. ध्यान रखिएगा, ये सोसाइटल टेस्ट सबके लिए सेम नहीं है. एक एलीट क्लास और हायर डिग्री ऑफ जो इकोनॉमिकली संपन्न है उनके लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास या बाकी डिफरेंट सोसाइटल क्लास जो अलग हैं एक दूसरे से, उनके लिए जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट होंगे. तो कोर्ट ने बोला है कि जिस सोसाइटी को वो डिसीज पर्सन बिलोंग करता था और जो उसको पेटिलेंस या डिफरेंसेस या क्वारल या डिस्कॉर्ड जो उसने झेला, क्या वो उसको लेके हाइपर सेंसिटिव तो नहीं था, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. तो हाइपर सेंसिटिविटी अगर कोर्ट ने पा ली तो भी लायबल नहीं करेगा, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव पर्सन ही ऐसे होते हैं जो एक छोटी सी बात को, लेट अस सपोज यू कैजुअली मेंशन अ पर्सन टू गो एंड डाई, अब अगर वो पर्सन हाइपर सेंसिटिव निकला तो वो हो सकता है सच में सुसाइड कमिट कर ले, और सुसाइड कमिट कर ले तो क्या इन दिस केस आर यू लायबल फॉर 306? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज योर वर्ड्स लैक द इंटेंशन. एंड सिमिलरली द डिसीज पर्सन वॉज हाइपर सेंसिटिव ऑल्सो. तो ये क्रुएलिटी के भी केस में देखेगा और ये जनरली भी देखेगा कि अगर कोई पर्सन बहुत ओवरली सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, जो ऑर्डिनरी पेटिलेंस, डिस्कॉर्ड या डिफरेंसेस को उनकी फेस वैल्यू पे लेने की बजाय कुछ ज़्यादा ही डीपली लेने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट गिल्टी नहीं मानेगा अक्यूज्ड पर्सन को फॉर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड. अगर उसने ये पा लिया कि जो डिस्कॉर्ड, पेटिलेंस और डिफरेंसेस थे वो उस लेवल के नहीं थे टू इंड्यूस द सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड इंडिविजुअल इन अ गिवन सोसाइटी टू कमिट सुसाइड. ठीक है, अगर आप झगड़ा करते हैं आमतौर पे अपने दोस्तों से, कितनी बार आप लोगों ने बोल दिया होगा भाई यार तुम जाके कहीं मर जाओ, हो सकता है बोला हो. अब मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, उसको ऐसे एक्सप्रेशंस बर्दाश्त नहीं है, एंड ही बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ द सोसाइटी एज यू डू एंड इन द क्लास ऑफ सोसाइटी इन विच यू यूजुअली मूव इन. उसको आपने बोल दिया, अब ड्यू टू हिज हाइपर सेंसिटिविटी ही कमिट्स द एक्ट ऑफ सुसाइड. नाउ योर कैजुअल एक्सप्रेशन ऑफ गो एंड डाई समवेयर कैन नॉट मेक यू लायबल, क्योंकि जो वर्ड्स हैं ना वो एम्प्टी वर्ड्स हैं, उसके पीछे इंटेंशन नहीं है. दैट इज वाई यू आर नॉट लायबल. And if you do not know about his hypersensitivity to the ordinary petulance, discord and differences, and you do not know about the situation that in a similarly circumstanced individual in a given society would not commit suicide as the deceased person has done, then in that situation you won't be held liable. ये बहुत ही आसान तरीके से समझने का. तो वही स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस ओरीलाल जायसवाल में भी बोला था कि हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स का टेस्ट नहीं होता. ये देखा जाता है कि अगर किसी डोमेस्टिक लाइफ में जो इंडियन सोसाइटी के लिए कॉमन है, या जिस सोसाइटी में जो विक्टिम और अक्यूज मूव इन करते थे, उसी सर्कमस्टेंस में कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल उन झगड़ों में या पेटिलेंस या डिस्कॉर्ड की वजह से सुसाइड कमिट नहीं करेगा, तो अगर किसी हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल ने सुसाइड कमिट कर ली तो डैट डजंट मेक अक्यूज बाय इटसेल्फ लायबल. सिर्फ इस फैक्ट से वो लायबल नहीं हो पाएगा. हाँ, लेकिन अगर विक्टिम को पता है कि अक्यूज्ड को पता है कि विक्टिम हाइपर सेंसिटिव है, द अक्यूज्ड फुली नोज दैट इफ ही मेक्स सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देन द विक्टिम वुड कमिट सुसाइड, एंड ही इंटेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द accused person of the victim. The accused person intends to take the advantage of the hypersensitivity of the accused person. In that situation he would be held liable, क्योंकि वहाँ पे वो victim की peculiar traits का advantage ले रहा है. ऑलराइट, तो जहाँ पे जानकारी नहीं है, जहाँ पे पर्सन हाइपर सेंसिटिव निकला, वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है. जहाँ पे आपको जानकारी है और जहाँ पे आप डेलिबरेटली वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक
a person commits suicide to commit a positive act towards the commission of suicide, in that situation person would be held liable. तो रेशियो जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस उरीलाल जायसवाल का, वो तो उसी पॉइंट पे है कि हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स का टेस्ट नहीं होता. वो देखा जाता है कि इफ़ victim who was committing suicide was a hypersensitive to ordinary petulance, discord or differences in domestic life quite common to society to which the victim belonged, and such petulances, discord or differences were not expected to induce a similarly circumstanced individual in a given society to commit suicide, then the conscience of the court will not be satisfied for basing a finding that the accused charged for abetting the offence of suicide should be found guilty. ठीक है, बट मैंने आपको रिवर्स भी सिचुएशन दे दी है जहाँ पे अक्यूज पर्सन एडवांटेज ले रहा है. ठीक है, वहाँ पे अगर उसने एडवांटेज ले ली तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाएगी. ध्यान रखिएगा, द पर्सन वो इज सेट टू हैव अबेटेड द कमिट द सुसाइड, मतलब जो अक्यूज होगा उसको एक एक्टिव रोल लेना बहुत ज़रूरी है. ही शुड प्ले एन एक्टिव रोल बाय द एक्ट ऑफ एन इंस्टिगेशन और डूइंग सर्टेन एक्ट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ सुसाइड, तभी वो लायबल करवाया जा सकता है उसके लिए. अगर वो एक्टिव रोल गायब है, कोई पॉजिटिव असर्शन गायब है, देन ही कैन नॉट बी मेड लायबल. अब देखिए, मैं अलग अलग शब्दों में एक ही बात कह रहा हूँ जो चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली और रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में बोली गई, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पूरा स्कोप क्या है किसी चीज़ का. वो पर्पस बस इतना ही है. अगर आप उसको आराम से समझ जाते हैं देन दैट वुड सफाइस. अलग प्रॉक्सिमिटी और बाकी चीज़ें और पॉजिटिव असर्शन, इनको अलग अलग शब्दों से इसलिए बोला जा रहा है. और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में अलग अलग शब्दों से बोले, जैसे राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में जो मैंने अभी बात बोली वो बोली गई थी. क्रिमिनल अपील नंबर 93 ऑफ 2019 में रिपोर्ट हुई. सॉरी, रिपोर्ट नहीं हुई, ये इसका जो टाइटल था क्रिमिनल अपील नंबर 93 और 2019 थी. इसका मुझे एसएससी का साइटेशन नहीं मिला या इंडियन कानून पे मुझे उसकी डिसाइडिंग डेट नहीं मिली, तो मुझे आपको क्रिमिनल वो वाला देना पड़ा. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात बोली है अलग एक्सप्रेशन में यूज़ करके. क्या बोला उसने कि सुसाइड, जो जिस पर्सन ने सुसाइड अबेट की है, जो अक्यूज पर्सन है, उसको एक एक्टिव रोल प्ले करना ज़रूरी होता है, आइदर बाय इंस्टिगेशन और बाय डूइंग अ सर्टेन एक्ट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ सुसाइड. ठीक है, मियर एलिगेशन ऑफ हरासमेंट without proximate positive action are not sufficient for conviction under 306. So I think this point should be self-evident for you. अब मैं अबेटमेंट टू सुसाइड और डाउरी डेथ के पॉइंट पे आता हूँ. अब 113A का प्रिजम्पशन याद रखिएगा. अब 113A पे मुझे आपको एक बात बतानी है. उसके जो मेन इंग्रेडिएंट थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए. सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला है कि द मियर फैक्ट दैट इफ अ मैरिड वुमन कमिट सुसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 7 years ऑफ हर मैरिज 113A ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करता. द लेजिस्लेटिव मैंडेट इज दैट वेयर अ वुमन कमिट सुसाइड विद इन 7 years ऑफ अ मैरिज एंड इट इज शोन दैट द हस्बैंड और रिलेटिव हैज सब्जेक्ट हर टू क्रुएलिटी एज इज डिफाइंड अंडर 498A ऑफ द IPC, तब प्रिजम्पशन अराइज करता है. सिर्फ सुसाइड से नहीं, क्रुएलिटी भी दिखानी होगी और प्रॉक्सिमेट लिंक दिखाना पड़ेगा, तब जाकर प्रिजम्पशन अराइज करेगा और तब कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे. ऑलराइट, ऐसे ही 113B में भी था. सारे एलिमेंट्स 113B के भी प्रूव करने चाहिए, ऑटोमेटिकली नहीं प्रिज्यूम कर लेता मेरे लिए बिकॉज अ चार्ज लगा है डाउरी डेथ का. सो इन पिनाकिन महिपात्र रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013 का जजमेंट है ये, और SSC में वॉल्यूम नंबर 10 में रिपोर्ट हुआ, पेज नंबर 48 इन ईयर 2013. Here the Supreme Court said, after examining the scope of Section 113A of the Indian Evidence Act and reiterated the legal position that if a woman commits suicide within the 7 years of her marriage and it is shown that her husband or relative of her husband has subjected her to cruelty as per the presumption defined under 498A, that is 113A of the IPC, the court may presume, having regard to all other circumstances of the case, that such suicide has been abetted by her husband or such person. The court held that though a presumption could be drawn, the burden of proof showing that the offence has been committed by the accused under 498A of the IPC is on the prosecution, and also under 306 as well is on the prosecution. Court held that the burden is on the prosecution to establish the fact that the deceased committed suicide and the accused abetted suicide.
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पाया था कि दिस वॉज अ केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. Supreme Court said that in the instant case there is no evidence to show whether it is an accidental death or whether the deceased has committed suicide. तो प्रिजम्पशन वही बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली आप 113A को प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि मेरे लिए आपने 306 का चार्ज देखा, मैरिड वुमेन की डेथ देखी, 7 साल के अंदर हुई, आपने ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लिया. नो, यू हैव टू सी कि क्या क्रुएलिटी हुई थी. एक बार क्रुएलिटी वाला पार्ट एस्टैब्लिश हो गया तब आप प्रिज्यूम कर सकते हैं 113A में कि येस ही माइट हैव अबेटेड सुसाइड. तो मेरे प्रिजम्पशन है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे, कोर्ट ना चाहे तो ना प्रिज्यूम करे. 113B में भी वैसा ही है. 113B में भी जो प्रिजम्पशन है ऑटोमेटिकली नहीं होता मेरे लिए बिकॉज द चार्ज ऑफ 304B. वहाँ पे भी दिखाना पड़ता है कि जो डेथ, डाउरी डेथ की जो इंग्रेडिएंट है वो सेटिस्फाइड है कि 7 साल के अंदर डेथ हुई, एसेट्रा एसेट्रा, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में, अदरवाइज देन अंडर द नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज, या बॉडीली इंजरी या बर्न्स की वजह से डेथ हुई, एसेट्रा एसेट्रा. फिर ये भी दिखाना पड़ेगा आफ्टर 7 years थिंग कि मैरिज के 7 साल अभी पूरे नहीं हुए. ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि सून बिफोर हर दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट इन कनेक्शन फॉर एनी डिमांड ऑफ डाउरी. ये 113B की बात है. इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी और क्रुएलिटी, ये दोनों ही चीज़ें 113B में इंक्लूडेड हैं पर 113A में नहीं है. इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी गायब है 113A में. तो 113A में क्रुएलिटी का स्कोप थोड़ा वाइडर है. 113B में थोड़ा इन अ सेंस क्रुएलिटी और हैरेसमेंट तो है ही, बट इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ सिचुएशन दैट इट शुड बी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी. तो कोर्ट ये आपसे कहना चाहता है कि प्रिजम्पशंस मैंडेटेड हैं. 113A में आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते. 113B में के तो अगर उसके इंग्रेडिएंट प्रूव हो गए तो आपको करना ही पड़ेगा, शायद प्रिजम्पशन है उसका. लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं. इनके इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. जो प्राइमा फेसी इंग्रेडिएंट जो ऑफेंस के हैं और जो प्रिजम्पशंस को रेज करने के लिए चाहिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टू प्रूव द रिक्विजिट फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन की. तो अब हम सिर्फ 113A के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, 113B के पर्सपेक्टिव में नहीं, क्योंकि उसका तो लेक्चर हो चुका है 304B के पर्सपेक्टिव में. अब 113A पे आपको ये ध्यान देना है कि प्रिजम्पशन लाइक अंडर 113B ऑटोमेटिक नहीं होता. सिर्फ ये दिखाना सफिशिएंट नहीं प्रोसिक्यूशन के लिए कि जो सुसाइड कमिट हुए 7 साल के अंदर हुई है. ये दिखाना भी ज़रूरी है कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी. ठीक है, क्रुएलिटी दिखानी ज़रूरी है कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी. तभी जाके 115B का जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होगा. सॉरी, 113B का जो रिक्वायरमेंट, 113A का जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होगा. तभी जाके ये नेसेसरी पैरामीटर्स हैं जो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने की जिम्मेदारी है. ये जिम्मेदारी अक्यूज्ड पे नहीं है. एक बार प्रोसिक्यूशन ने इनिशियल चीज़ें डिस्चार्ज कर दी, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया, तब कोर्ट चाहे तो इट मे प्रिज्यूम दैट येस द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ अबेटेड द सुसाइड. और अगर चाहे तो उन फैक्टर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए भी मना कर दे कि नहीं, वी वोंट प्रिज्यूम इट. सो दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट. एज फार एज 113A is concerned, where the question is whether the accused has abetted the suicide of a married woman, and death has occurred within 7 years of marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty by the husband or the in-laws or her in-laws. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले भी बताई थी कि पिनाकिन महापात्र में जो सीधे जो क्वेश्चन था वो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके. क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से मान लिया जाएगा कि वो क्रुएलिटी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से क्रुएलिटी की डेफिनेशन में नहीं आता है. वो इलीगल और इमोरल एक्ट तो है, बट बाकी के इंग्रेडिएंट भी तो आपको सेटिस्फाई करने होंगे क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करने के लिए. देयर इज नो डिनायल ऑफ द फैक्ट दैट द क्रुएलिटी नीड नॉट बी फिजिकल और अ मेंटल टॉर्चर और एबनॉर्मल बिहेवियर दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी or harassment in a given case. It depends on the fact and circumstances of the case. But mere extramarital relationship, the mere fact that the husband is involved in an extramarital relationship and there is some suspicion in the mind of the wife, that cannot by itself be regarded as mental cruelty. Per se extramarital relationship को नहीं मानता है वो cruelty. लेकिन एक और चीज़ साथ में बोल देता है, अगर prosecution ये साबित कर लेता है कि if the prosecution brings home some evidence on record to show that the accused has conducted in such a manner as to drive the wife to commit suicide, then
in that situation it might hold that it is a mental cruelty under 498A. Let us suppose कि जो husband है extra marital affair सिर्फ इसीलिए रखा है because he wants to commit cruelty on the wife. He goes on sharing his stories about extramarital affair with another woman, and he shares these opinions with his wife in order to goad her, to urge her forward to commit suicide, to instigate her so that she may commit suicide. तो एक proximate act वो चाहता है, वो करवाना चाहता है कि उसकी जो उसकी वाइफ है वो मर जाए किसी भी तरीके से. तो वो extramarital affair सिर्फ इसी इंटेंशन से रखा है. And then he shares his stories regarding his extramarital affair and his sexual adventures with other women with his wife in order to constitute cruelty on her. तब वो उसको ला सकते हैं. तब आप उसको कह सकते हैं वो cruelty है as defined under 498A. और फिर अगर वो cruelty defined हो गई और फिर देखा गया कि the accused person was urging the wife, instigating the wife to move forward in a positive way towards the act of commission of suicide, तब जाके आप 306 के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई कर लेंगे. पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से लेट अस सपोज हस्बैंड का छुप छुपा के अफेयर है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से कोर्ट के ऑटोमेटिक प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ ये क्रुएलिटी है, हाँ उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ इसी इंटेंशन से किया था कि उसकी वाइफ सुसाइड कमिट कर ले. द आंसर वुड बी नो. लेट अस सपोज हस्बैंड की शादी से पहले भी गर्लफ्रेंड थी और शादी हो गई उसकी किसी और वुमन से, लेट अस सपोज ड्यू टू फैमिली प्रेशर और सम रीजन और दी अदर. शादी के बाद ही कंटिन्यूज विद हिज अफेयर विद दैट हर प्रीवियस गर्लफ्रेंड. वाइफ को ये इस बारे में किसी तरीके से जानकारी मिल जाती है. ड्यू टू दैट शी इज़ इन शॉक, शी कमिट सुसाइड. तो क्या ये बोल दिया जाएगा कि हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से इसीलिए रखी थी क्योंकि वो चाहता था उसकी वाइफ सुसाइड कर ले? ऑब्वियसली नॉट. He was just indulging into an extramarital relationship without there being any intention to commit cruelty upon his wife. That was not his intention. His intention was to indulge in extramarital relationship, but his intention was not to commit cruelty by the means of that extramarital relationship. That you need to keep in mind. So Pinakin Mahipatre Rawal versus State of Gujarat is a leading judgment on this point. Similarly, KV Prakash Babu versus State of Karnataka, इसमें भी वही इशू था. इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ हस्बैंड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनवाइट्स हिज कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 306 फॉर द अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड ऑफ वाइफ और नॉट. ये भी इसमें भी यही पॉइंट्स हेल्ड हुए थे. और घूसा भाई रायसेकन भाई चौरासी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में भी यही पॉइंट हेल्ड हुए थे. अच्छा, पिनाकिन महिपात्र में हुआ क्या था ये भी बता दूं आपको. इसमें क्या हुआ था कि वाइफ को एक सस्पिशन हो गया था उसके हस्बैंड पे कि जो उसका हस्बैंड है उसका एक पर्सन है हर्षवत थामा, उसकी जो डॉटर है दीपा, उसके साथ अफेयर है और उसको सस्पिशन था. उस सस्पिशन की वजह से गाँव में उल्टी सीधी बातें होती थी कि उसका अफेयर है, तो उसकी वजह से वो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड शी कमिटेड सुसाइड. सस्पिशन पे इटसेल्फ, अभी कोई फैक्ट प्रूव नहीं हुआ था, सस्पिशन पे शी कमिटेड सुसाइड. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दिस सिचुएशन इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू होल्ड दैट द प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश द चार्ज अंडर 498A एंड द फैक्ट दैट द क्रुएलिटी इंड्यूस द वाइफ टू कमिट सुसाइड. 498A का चार्ज इसलिए एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है क्योंकि क्रुएलिटी की डेफिनेशन वहीं पे, पहले क्रुएलिटी एस्टैब्लिश करोगे फिर तो आप जाके बाकी लिंग एस्टैब्लिश कर पाओगे ना. तो कोर्ट ने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से क्रुएलिटी की डेफिनेशन में नहीं आ सकता. It is manifest that the wife was guided by a rumor that aggravated her suspicion, which has no boundaries. कोर्ट ने बोला suspicion या शक की तो कोई बाउंड्री तो होती नहीं. The seed of suspicion planted in mind brought the eventual tragedy, but such an event will not constitute the offence or establish the guilt of the accused appellant under 306 of the IPC. Having said that, Supreme Court said that we intend to make it clear that if husband gets involved in extramarital affair, that may not in all circumstances invite conviction under 306 of the IPC, but definitely can be a ground of divorce or other relief in the matrimonial dispute under other enactments. Supreme Court कह रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर से अबेटमेंट टू सुसाइड या क्रुएलिटी नहीं माना जा सकता पर से. अब आपको वो सिचुएशन भी ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको पहले बताई, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज इंडल्ज्ड इनटू विद द इंटेंशन टू प्रोवोक द वाइफ टू कमिट सुसाइड. वो सिचुएशन डिफरेंट है.
अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धालिंग वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक थोड़ा फ्लॉड जजमेंट दिया है 4 पेज का, जहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट से डिसएग्री किया है, तो रेफर नहीं किया है उनको। तो सिद्धालिंग वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो सिचुएशन है वो ख़राब है, इट डज़ नॉट ले डाउन द करेक्ट लॉ। इस केस में क्या कहते हैं, जो वाइफ है उसने सुसाइड कर ली थी बिकॉज शी फाउंड दैट हर हस्बैंड वॉज इन एन इलिसिट अफेयर विद अदर वुमन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाय इटसेल्फ क्रुएलिटी मान लिया एंड कन्विक्टेड हिम फॉर 306। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धालिंग में ना प्रीवियस जजमेंट रेफ़र किए, ना पिनाकिन माहिपात्रे रावल को रेफ़र किया, ना घुसा भाई रंगसेन भाई चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के जजमेंट को रेफ़र किया, ना केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जजमेंट को रेफ़र किया। ये 4 पेज का छोटा सा जजमेंट था। सो इट्स पर इनक्यूरियम, इट डज़ नॉट ले डाउन द करेक्ट लॉ, डू नॉट रिलाई ऑन इट। ठीक है, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी है। अब मैं आपको डाउरी डेथ्स के मतलब अवेटमेंट टू सुसाइड बाय मैरिड वुमेन को लेके कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस देता हूँ। जैसे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह का 10 मई 1991 को ये डिसाइड हुआ। Here the relationship between the husband and wife were very strained over dowry to a level that a wife sought police protection, apprehending danger to her life. हस्बैंड था, बहुत मारता था वाइफ को और थ्रेटन करता था घर से निकालने का, निकाल भी देता था कई बार, और इसकी वजह से वाइफ ने कई बार पुलिस को लेटर लिखे इंक्लूडिंग कमिश्नर एंड SSP, बट टू नो अवेल। और पुलिस प्रोटेक्शन की उसने डिमांड की बिकॉज शी वॉज एप्रीहेंडिंग डेंजर टू हर लाइफ। वन डे शी सेट हर सेल्फ ऑन फायर एंड अलॉन्ग विद हर 3 चिल्ड्रन, खुद को भी आग लगा ली अपने 3 चिल्ड्रन के साथ। एंड शी सेट हर सेल्फ अब्लेज एट द रेसिडेंस ऑफ हर हस्बैंड। So before attempting suicide, she left a note which stated that her husband demanded additional dowry from her and her mother-in-law and sister-in-law made false accusations against her and also conspired to kill her one night by sprinkling on her kerosene, but their plan misfired. It was held in this case that the husband was responsible for creating situations where his wife committed suicide and was responsible under 306 ऑफ दी IPC। अब आप रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के जितने भी इंस्टिगेशन और प्रोवोकिंग, अर्जिंग फॉरवर्ड, प्रॉक्सिमेट एक्ट, पॉजिटिव एक्ट की जब टेस्ट लगाएंगे ना इस केस पे, आपको सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड मिलेंगे। दिस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो लाइकवाइज इन दिस केस फाउंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड बीइंग सेटिस्फाइड, और प्रिजम्पशन भी अराइज हो गया था। तो कोर्ट ने ऐसे सिचुएशन में इकबाल सिंह को लायबल पाया। अब एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है स्टेट वर्सेस अनिल कुमार का। इसमें वाइफ ने अपने आप को आग लगा ली, हस्बैंड बस खड़े हुए देख रहे थे, कुछ नहीं किया उसने, ही जस्ट सैट देयर। तो ये जो इलीगल ओमिशन उसने किया ना, हाई कोर्ट हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल अंडर 306। इस बात क्योंकि वाइफ ने अपने आप को आग ही इसलिए लगाई थी बिकॉज शी वॉज फेड अप ड्यू टू द कंसिस्टेंट डिमांड फॉर डाउरी, शी वॉज फेड अप ऑफ इट। और रोज़ उसको हैरेस करना, रोज़ उसको परेशान करना, तो शी इवेंचुअली कुडंट टेक इट एनीमोर। तो हस्बैंड ने डिफेंस ये लिया था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ वहाँ पे खड़ा। सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला कि आप खड़े रहे थे, अब आप जेल में खड़े रहिए। तो इनको ड्यू टू फॉर हिज इलीगल ओमिशन सज़ा हुई थी। ठीक है, इनको अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए लायबल माना गया था। बट इन स्टेट वर्सेस कृपाल सिंह में वाइफ ने कभी भी डिमांड फॉर डाउरी या हैरेसमेंट के लिए कंप्लेन नहीं किया, बट soon after marriage she committed suicide। तो ऐसे केस में हाई कोर्ट ने फैक्ट्स इनसफिशिएंट माने टू कन्विक्ट अ पर्सन फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। क्योंकि देखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, मियर फैक्ट दैट द वाइफ कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज आर नॉट बाय इटसेल्फ सफिशिएंट। आपको क्रुएलिटी का नेसेसरी पॉइंट दिखाना पड़ता है। अब इन महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP में क्या हुआ था, अपेलेंट वॉज चार्ज फॉर एन ऑफेंस अंडर 306 IPC एंड ये पूरा केस डाइंग डिक्लेरेशन पे बेस्ड था। अब डाइंग डिक्लेरेशन में क्या लिखा था, माई मदर इन लॉ एंड हस्बैंड एंड सिस्टर इन लॉ harassed me, they beat me and abused me. My husband Mahendra wants to marry a second time and he has illicit connections with my sister-in-law, मतलब भाभी के साथ अफेयर है इनका। Because of these reasons and being harassed, I want to die by burning। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अबेटमेंट की डेफिनेशन देखी, फाउंड दैट द चार्ज एंड कन्विक्शन of the appellant for an offence under 306 is not sustainable merely on the allegation of harassment. Supreme Court further held that neither ingredients of the abatement are attracted on the statement of deceased person। Supreme Court ने इस केस में जो फैक्टर्स थे
अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के वो पूरे नहीं पाए थे, क्योंकि केस में क्या क्या और चीज़ें पता चली वो ये भी थी कि जो झगड़े होते थे दैट वाज इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग, और ये भी साबित हो गया कि वहाँ पे कोई एडिशनल क्रुएलिटी डाउरी को लेके या किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेके नहीं थी, और मियर झगड़ों को लेके वाइफ ने अचानक से सस्पिशन की वजह से उसने सोचा कि जो हस्बैंड है दूसरी शादी करना चाहता है और उसका सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर है, तो ऐसे में शी थॉट दैट इज़ अ सफिशिएंट केस दैट आई शुड किल माई सेल्फ, एंड शी एक्चुअली किल्ड हरसेल्फ एज वेल। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 306 के पैरामीटर्स पूरे नहीं पाए थे, क्योंकि देखिए 306 के चार्ज के लिए क्या एसेंशियल है, विलफुल कंडक्ट which is likely to drive the deceased to commit suicide or have grave injury। अब ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी झगड़े की वजह से और सस्पिशन की वजह से मेरली सुसाइड कमिट कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैक्ट्स सेटिस्फाइड नहीं पाए थे इस केस में, क्योंकि अर्जिंग, गोडिंग, पॉजिटिव एक्ट्स, क्रुएलिटी का नेक्सस विद द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और डेथ ऑफ द डिसीज्ड, वो सारी चीज़ें इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली नहीं मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पाया था इट इज़ बेटर टू क्विट देन कन्विक्ट। बट आप एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट देखिए, एंड इट इज़ अ प्रॉपर जजमेंट, इट लेज डाउन द करेक्ट लॉ। जीवन बाबू देसाई ऐसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें अपेलेंट ने अपनी वाइफ की ज़िंदगी इम्पॉसिबल कर दी थी। ही ड्यू टू हिज ड्रंकनेस एंड इंक्रीजिंग रिकॉर्स टू ड्रिंकिंग, he had become violent, he had started suspecting the chastity of his wife, and he was intemperate and indiscriminate and used to beat his wife daily, and that drove the wife Ratan, in this case wife का नाम रतन था इस केस में, to a desperation, and she took her own life due to this constant conduct। And in this case the high court found that the parameters of 306 are established। ये जो सारा एनवायरनमेंट था, जो विलफुल कंडक्ट था अक्यूज्ड पर्सन का, ये सारा combined together drove the deceased person towards the act of commission of suicide। ये सिंपल बात यहीं से साबित हो जाती है कि जब आप किसी की ज़िंदगी ऐसी हेल कर दें कि उसको ये लगे, अज्यूमिंग द पर्सन इज़ नॉट हाइपर सेंसिटिव, कि आपने उसकी ज़िंदगी ऐसी हेल कर दी कि उसको मरना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जीना नहीं। एंड इस केस में जैसे कि वायलेंट कंडक्ट था, इनटेम्परेट था, रोज़ झगड़ा, रोज़ मारना, रोज़ पीटना, द वाइफ वॉज कॉन्स्टेंटली लिविंग इन फियर। तो ऐसी सिचुएशन में उसको जब मरना सही लगा जीने से ज़्यादा, तो इट मीन्स कि इट वॉज द अक्यूज्ड whose constant conduct made her life miserable, and this conduct was with an intention to make her move forward towards the act of commission of suicide। सिमिलरली दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है श्री मोहन चंद खोलिया वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली। इन दिस केस के फैक्ट्स छोटे में बता देता हूँ। इसमें भगवती कोलिया, who was the wife, was brought to a hospital with burn injuries, and she gave her statement to the police wherein she stated that she was married to the petitioner Mohan Chand Kolia 12 years back. Her husband petitioner used to suspect her character and used to quarrel with her every day. On the day of the incident at about 6 a.m. when she came downstairs with her children, the petitioner started abusing her. Her brother Ashok, who also resided in the same area, was called, and after some time her brother Ashok went out of the house and the petitioner also went out. The petitioner came back after some time and abused her saying, "You bloody whore, why don't you die?" अब ये उसने हिंदी में बोला था, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ because it is not good for the lectures. Thereafter the wife was shell shocked by the rude attitude of her husband, and after that she bolted the room and set herself on fire after pouring kerosene oil on her, and she died consequently. The Delhi High Court found that in this case the accused is liable for both under 306 and 498A। और भी क्या फैक्ट्स प्रूव हो गए थे कि the husband was usually cruel to her और यूजुअली उसे झगड़ा करता रहता था, और सबके जो लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक वो यही था कि जो उसने पब्लिकली इंसल्ट किया उसको बाय सेइंग दैट यू ब्लडी वो यू व्हाई डोंट यू डाई, व्हाई डोंट यू गो एंड डाई, दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। शी कमिटेड सुसाइड
ड्यू टू द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। हाई कोर्ट ने क्या पाया? इंस्टिगेशन था, विलफुल कंडक्ट था, वर्ड्स के पीछे इंटेंशन था, और साथ में डेथ और एक्ट्स के बीच में एक प्रॉक्सिमेट कनेक्शन था। ही वॉज अकॉर्डिंगली हेल्ड लाइबल फॉर 306 एंड बोथ 498A। अब ध्यान रखिएगा, इसमें ना 113A की प्रिजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि बाय द एडमिशन ऑफ द वाइफ इटसेल्फ उसने बताया था कि 12 साल हम लोग की शादी को हो चुके थे, तो 7 साल का प्रिजम्पशन चलता है 113A में, है ना। 113A क्या कहता है? व्हेन द सुसाइड हैज़ बीन अवेटेड बाय अ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड एंड इट शोन दैट शी हैज़ कमिटेड सुसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 7 years, तब तो 113A का प्रिजम्पशन आता है कि कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर ले, चाहे तो ना प्रिज्यूम कर ले। पर यहाँ पे जब फैक्ट ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड ही प्रूव हो गया, तो अबेटमेंट की क्या, अबेटमेंट के प्रिजम्पशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है 113A में, है ना। सो कभी भी ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 7 साल के ऊपर हो गए तो अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव नहीं हो सकता मैरिड वुमन के को लेके। अब आराम से प्रूव हो सकता है, इट डजंट नीड दैट, इट डजंट नीड द प्रिजम्पशन अंडर 113A। 113A तो एक तरीके से रिलैक्सेशन है बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके। इट जस्ट रिलैक्सेस द बर्डन ऑफ प्रूफ रिलेटिंग टू द प्रोसिक्यूशन। इट डजंट डिस्पेल्स कि आप प्रूव ही नहीं कर सकते मैरिड वुमन की सुसाइड अगर 7 साल के ऊपर हो गया। नो, कभी भी ऐसा मत सोच लीजिएगा। आई नो सम ऑफ यू माइट थिंक लाइक दैट, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट हियर इटसेल्फ। ये केस तुरंत रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पे 12 साल हो गए थे शादी को, तब भी 306 में कन्विक्शन हो गया था और 498A में भी। पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोमिदी राजामल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में 29 दिसंबर ईयर 2000 को डिसाइड हुआ था। इसमें क्या कहते हैं 306 के लिए लायबल नहीं पाया, पर 498A के लिए लायबल पाया। अच्छा, इसमें जो वाइफ थी जिसने सुसाइड कमिट कर ली थी, उसका डाइंग डिक्लेरेशन था, वो ये था: सिंस माई मैरिज माई हस्बैंड इज एडिक्टेड टू ड्रिंक and he used to come home in a drunken state. He used to torture me, abuse me and beat me. He used to spend more money on drinks. He previously, without hearing my words, used to abuse me and beat me several times, unable to bear the torture and thought of dying. So one day on 29th 1 1993, my husband Raja Malu came in drunken state and started abusing me and attempted to beat me. When I asked him, why are you coming in a drunken state and why are you doing like this, for that he abused me and said that it is my will. husband ने कहा ये मेरी मर्जी, are you earning the money, क्या तुम पैसा कमाती हो, and also abused me, and he said that he does not bother if I live or if I die, and asked me to die, and due to that she committed suicide. अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पे 306 के फैक्ट्स पूरे नहीं माने थे, पर 498A की क्रूएलिटी एस्टैब्लिश हो गई थी। इसलिए नहीं माने थे क्योंकि ड्यू टू प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड सम अदर थिंग्स ये दिख गया था कोर्ट को कि जो वर्ड्स थे हस्बैंड के, उसके पीछे कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वाइफ को एक्चुअली में सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। ऑल्दो द कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड वाज वेरी मच डेप्लोरेबल इन दिस केस। अब गिरिजा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? डॉटर इन लॉ वाज सब्जेक्ट टू मैल ट्रीटमेंट एंड स्टारवेशन विद द सुपर एडेड फैक्ट ऑफ looking for another girl for the boy was held to be sufficient enough to constitute abatement for the purpose of 306. यहाँ पे डॉटर इन लॉ को जो अक्यूज थे was subjecting her to maltreatment and starvation, साथ में अपने बेटे के लिए वो दूसरी लड़की भी ढूंढ रहे थे शादी के लिए। वो जो वुमन थी, she couldn't tolerate this abuse and the fact that along with all this her father-in-law is looking for another woman for her husband. In that situation she committed suicide. यहाँ पे ये लाइबल कर दिए गए थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट इस पॉइंट पे एक और है, वो है बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP का 1999 का है। इसमें वाइफ ने सुसाइड इसलिए कर ली थी बिकॉज शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर फूड और क्लॉथिंग एंड बिकॉज द हस्बैंड वॉज पुअर. हस्बैंड ड्यू टू पॉवर्टी could not actually provide her wife proper food and clothing, so the wife committed suicide due to that. अब इस केस में husband was not liable for 306 and you can understand why. Similarly एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, here एक इंस्टेंस आपको देता हूँ जहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर्स पे एलिगेशन लगा था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का. A student committed suicide because the principal scolded him
hit him and asked him to apologize before students in the assembly when the gutka pouches were recovered from his bag. In this case, Supreme Court said, Rajasthan High Court said, even if these allegations are taken at their face value, then there is no evidence to show that the petitioner has instigated or intentionally aided the commission of suicide. It is unthinkable that while trying to maintain the discipline of the school, the principal would instigate or intentionally aid the commission of suicide by the student. है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए गुटखा पाउच स्टूडेंट से रिकवर हुए, 2 थप्पड़ लगा दी और बोला कि अपोलोजाइज करो, क्या ये अबैटमेंट टू द सुसाइड कहलाएगा? नहीं, इट वोंट, बिकॉज यहाँ पे वो जो नेसेसरी एलिमेंट है 306 का, जो अबैटमेंट के लिए इंस्टिगेशन ज़रूरी है, जो पॉजिटिव एक्ट्स ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू मेक द डिसीज मूव फॉरवर्ड, वो कंडक्ट ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इंड्यूस अ पर्सन टू कमिट सुसाइड, वो सारी जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं 306 के लिए वो एब्सेंट थी, है ना. जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था, जो रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो रेशियो है, और जो चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली में जो रीटरेट हुआ है, उसका जो रेशियो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही वॉज ऑल्सो एक्विटेड. सिमिलरली एक इलस्ट्रेशन ये है कि जहाँ पे एक केस में क्या हुआ था कि अ पर्सन वॉज प्रेशर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ लोन. उसने एक लोन लिया था, वो आदमी रोज़ आके उससे पूछता था मेरा पैसा कब दोगे, मेरा पैसा कब दोगे. इवेंचुअली फाइंडिंग हिमसेल्फ बीइंग हरास्ड बाय द पर्सन डेली लोन को लेके, ही कमिटेड सुसाइड. तो वहाँ पे भी एडवर्टमेंट टू सुसाइड नहीं माना गया था, क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति, जो क्रेडिटर था, जो अपना पैसा वापस लेना चाह रहा था, उसको अपना लोन वापस लेना था. ही नेवर इंटेंडेड दैट द विक्टिम शुड कमिट सुसाइड. एंड यहाँ पे भी इंस्टिगेशन लैकिंग था, पॉजिटिव एक्ट्स और अफर्मेशन लैकिंग था. अगर जिसने लोन दिया है वो लॉफुली लोन वापस मांग रहा है और वो डेट चाहता है, तो दैट कैन नॉट बी हेल्ड टू बी एन अबैटमेंट टू सुसाइड बाय इटसेल्फ. आप किसी को उधार दें और उधार वापस मांगें और वो कहे कि मैं अगले महीने दे दूंगा, फिर अगले महीने आप फिर फ़ोन करें कि मेरा पैसा कब दोगे, और इस बात से तिल मिला के सुसाइड कमिट कर रहे हैं, कैन यू बी हेल्ड लाइबल फॉर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड? नो. योर प्राइमरी मोटिव इज टू गेट योर लोन रिकवर्ड एज अ क्रेडिटर. you don't intend that victim should commit suicide. तो इस केस में भी यही था. सो लोन रिकवरी या रीपेमेंट वापस मांगना या रीपेमेंट फॉर लोन डिमांड करना, that itself cannot make a person liable for abatement to suicide if by this mere statement of demanding repayment of loan the victim commits suicide. ठीक है. Similarly, there was this case that a failure, इसमें रेशियो ये था कि फेलियर टू अपीयर एट द अरेंज मैरिज को भी अबैटमेंट नहीं माना जाता. अब क्या हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? In this case, the accused settled up a marriage ceremony date with the girl with whom he was involved in a love affair, but she did not turn up. The girl committed suicide. It was not proved that the accused intended to lead her to suicide by not marrying her or knew that the suicide was a likely consequence. It being the independent act of the victim girl, the accused was acquitted. तो हुआ क्या कि लड़की के साथ शादी फिक्स की, वो खुद ही शादी में नहीं आए. तो वो गाना नहीं है कि मैं अपनी शादी में ना हूँ, मेरी मर्जी, गोविंदा का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो एक्चुअली अपनी शादी में ना हूँ कि कभी कभी प्रोसिक्यूशन कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इफ द वुमन डाइज. तो अबैटमेंट टू द सुसाइड तो नहीं था इस केस में, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ था कि लव अफेयर था वुमन के साथ और शादी की डेट फिक्स हुई है, खुद ही शादी पे नहीं आए. लड़की ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई, शी किल्ड हरसेल्फ, कमिटेड सुसाइड. अब यहाँ पे कोर्ट को ये नहीं मिल पाया कि दैट द अक्यूज्ड इंटेंडेड टू लीड हर टू सुसाइड बाय नॉट मैरिंग हर, और ही न्यू दैट कि अगर वो नहीं आएगा शादी पे तो वुमन सुसाइड कमिट कर लेगी. ये दोनों ही चीज़ें उसको नहीं पता थी. तो ये क्योंकि विक्टिम गर्ल की इंडिपेंडेंट एक्ट थी, दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट हेल्ड लायबल, क्योंकि 306 के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे. Similarly, mere fact that a husband has contracted a second marriage is also per se not an abetment to suicide. अगर फर्स्ट वाइफ ने ये देख लिया कि हस्बैंड ने सेकंड एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है और
सीधे उसने इसी बात पे सुसाइड कमिट कर ली, तो उसको बाय इट सेल्फ इंस्टिगेशन नहीं मान सकते जब तक 306 के बाकी के पैरामीटर्स नहीं प्रूव हो जाते। जब तक ये नहीं प्रूव हो जाता कि हस्बैंड को पता था कि वाइफ ऐसा कर सकती है एंड ही फुली इंटेंडेड दैट वाइफ टू एक्ट इन सच अ वे एंड मूव टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ सुसाइड। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं इस्टेब्लिश हो पाएँ तो मेयर फैक्ट दैट अ बाइगैमी दैट द हस्बैंड हैज़ परफॉर्म्ड अ बाइगैमस मैरिज, he cannot be held responsible for death of a first wife under 306। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है बाय द वे। आई थिंक ऑल ऑफ इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द पॉइंट। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हाइपर सेंसिटिविटी अगर पाली कोर्ट ने तो तो हो सकता है चार्ज 306 का प्रूव ना हो पाए। वो हाइपर सेंसिटिविटी का पॉइंट याद रखिएगा, पॉजिटिव एक्ट का पॉइंट याद रखिएगा, प्रॉक्सिमेट नेक्सस बिटवीन द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द डेथ ऑफ द डिसीज्ड होना चाहिए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस गवर्नमेंट इन सिटी दिल्ली और रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो रेशियो है उसके पैरामीटर्स ध्यान रखिएगा। ये इलस्ट्रेशन आपको सिर्फ पॉइंट समझाने के लिए थे। एंड अबैटमेंट टू द सुसाइड एंड डाउरी डेथ में कैसे अबैटमेंट होता है और मैरिड वुमेन की अबैटमेंट ऑफ द सुसाइड की क्या पोजीशन है और 113A और 113B की क्या पोजीशन है वो कंप्लीट हो गई। सो आई थिंक दैट वुड सफाइस फॉर टुडे। टुमारो विल स्टार्ट विद अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है।